Hello guys, this is Avinash and this will be the first video of our new channel, that is Sanyukta and Avinash official. Our first channel is Sanyukta Singh Studio, that is completely and well managed by my wife Sanyukta Singh, who is a design aspirant, and at the same time she has been helping the design students, especially who wants to be a fashion designer or textile designer, who wants to crack the design entrance exam. So she has been doing it, and we just took this initiative so that we can share our life experience and throughout journey of our life as of now. So the first video will be all about our COVID experience, pre-COVID experience, during COVID symptoms, and post-COVID experience. Do watch this video completely because I'm going to share some valuable information. बहुत ही important information मैं share करने वाला हूँ because मैं आपको बताऊंगा कि actually लोग कहाँ पे mistake कर रहे हैं और कहाँ उनको नहीं करनी चाहिए, और कुछ sense इंसान को खुद भी लगाना चाहिए. You should not completely depend on doctors because they are also working tirelessly. बहुत काम कर रहे हैं. In a day they have more than 200 appointments and they have been managing so many patients, so it's very difficult for them to answer every single question, though they try. In my case, yes, my doctor, he well managed our complete family. So स्टोरी ऐसी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था घर में, एंड सबको यही लगता है कि मैं तो हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे हो सकता, हाउ डिड इट हैपन टू मी, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो 5 मिनट के लिए यहाँ गया था, मैं किसी के कॉन्टैक्ट में तो आया नहीं. ट्रस्ट मी, द सेकेंड वेव एंड द स्ट्रेन ऑफ द न्यू कोरोना वायरस इज़ क्वाइट इन्फेक्शियस and it has been proven that it's airborne as well, मतलब हवा के थ्रू भी फैल रहा है ये. So मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा इस चीज़ में, मैं आपको exactly बताता हूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया और मैं किस फेज़ से गुज़रा. मैं 14th of April को मॉर्निंग में मुझे फीवर आया था एंड आई इमीडिएटली आइसोलेटेड माई सेल्फ, दो इट वॉज इन माई माइंड कि मुझे कैसे हो सकता है, कोविड तो हो नहीं सकता, दो आई इमीडिएटली आइसोलेटेड. But it's a big family of 6 people and it's really difficult. कभी कोई खाना लेके आ रहा है, रख दे रहा है, and they are like, अरे नहीं कोविड थोड़ी ना हुआ होगा. I tried making them understand, but it was very difficult. On 16th, my kid and my wife, they got fever. And suddenly it stuck in my mind and I realized, no, there is something wrong. कुछ गलत है. On 17th, मैंने अपनी वाइफ का और अपनी मम्मा का, उनको कोई सिम्टम नहीं था, शी जस्ट हैड बॉडी एक एंड लिटिल हेडेक, बट मैंने उनका भी टेस्ट करवाया एंड वी ऑल 3 वेर पॉजिटिव. आई गॉट द रिजल्ट ऑन 18th, द रिपोर्ट एक्चुअली. And we were like, full family, my younger brother, my dad, my mom, my wife, everybody was just sitting together and they were like, okay, ये phase में निकल जाएगा, nothing to worry, it's just mild symptoms. We were laughing, watching TV all together, cooking in the house, me and my younger brother, we were just cooking in the kitchen and we were just trying to take it in a way कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको घबराने की ज़रूरत है. जस्ट कीप फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स बिकॉज 14 से मैंने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड ही स्टार्टेड द मेडिकेशन immediately the same day, and it was a COVID medication because they said nowadays in fact even if this is a viral infection, but we are giving certain medicines which is also being used in COVID protocol. So we were just like taking medicines and following the protocol, and we asked our maid, our cook, to leave the house and to not come for the next 15 to 20 days or until we inform them. क्या हुआ फिर 19th को my wife she started having little cough, और वो cough थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. I immediately informed my doctor and he asked to get the HRCT of chest done. I took her to the lab and they did this scan, and the same day I got the report on 19th. It was 3 out of 25, which is very mild infection.
आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, इनका भी नॉर्मल है, बिकॉज मेरा तो था ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, फीवर था, 4 दिन बाद चला गया। मेरी मम्मा को कुछ भी नहीं आया था, शी वॉज पॉजिटिव, पर उनको कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, फीवर भी नहीं आया था। मेरे डैड को 18th को आया, एक दिन में फीवर चला गया, स्टिल ही वॉज ऑन मेडिकेशन फॉर द कोर्स ऑफ टाइम। मेरे ब्रदर को भी 19th को फीवर आया, उसका भी फीवर चला गया एक दिन में, बट शी वॉज स्टिल हैविंग फीवर टिल 19, 16, 17, 18, 19, 4 days हो चुके थे। I informed the doctor, he said it's a very mild infection, nothing to worry, but he asked to get the blood test as well, and there are certain terms in blood test, CRP and all. मैंने वो करवाया 21st को, and CRP was at quite high end. I forwarded the reports to my doctor. We were on video consultation. He checked the reports and he said वो थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था उस टाइम पे. It was very difficult for me, but because सब कोई निकल आया, but she was still fighting. And 21st को डॉक्टर ने मेडिसिन को चेंज करी इनकी, और she was okay. I was checking the SpO2 level every now and then, and she was maintaining 96, 97, which was quite okay. On 23rd, she started having severe cough and little shortness of breath, which was quite scary for me. बहुत difficult हो गया था मेरे लिए, and I was quite scared as well. बहुत डर गया था मैं, and मैंने डॉक्टर को immediately inform किया. SpO2 was going down and she was maintaining 91, 92 on 23rd of April. डॉक्टर ने HRCT दोबारा कराने को बोला, and I immediately took her to the lab next day in the morning itself, and the report was quite scary. It was 19 out of 25. When I checked the report by myself before forwarding it to the doctor, I got shattered completely. It was quite difficult for me to digest that how come the infection level reached from 3 to 19 in just a matter of time. Though the doctor, उन्होंने मेडिसिन 21 तारीख को ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें ओरल स्टेरॉइड्स भी थे. मुझे लगता है शायद वही रीज़न था कि वो अपने SpO2 को मेंटेन कर पा रही थी अबव 90. ऑन 24th जब डॉक्टर को मैंने फॉरवर्ड करी वो रिपोर्ट, ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड एंड ही सेड कि द सिवियरिटी स्कोर इज़ क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा सीवियर है. और उन्होंने पूछा SpO2 कितना मेंटेन कर रही है. आई सेड अबव 90, लाइक 90, 91, 92. ही सेड दैट मीन्स वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही है. सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, डू नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ हर, कीप हर हैप्पी, जॉली मूड में रखो, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी के लिए घर पे मंगा के रख लो. और आपको पता है कितना डिफ़िकल्ट था दिल्ली में उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना. I dialed, actually I'm also a ground volunteer to help the COVID patients who are not able to get the ICU beds, oxygen beds or oxygen cylinders everywhere in Delhi. Out of state भी मैं कोशिश करता हूँ, बैंगलोर, कोलकाता, पटना and all these cities जो मेरे contacts से help करने के लोगों की. I immediately took my phone and dialed out some numbers, और एक बहुत मुश्किल से लीड मिली ऑक्सीजन सिलेंडर की. 24th नाइट की बात है, and he agreed to deliver. That was about 46 liter of cylinder. He agreed to deliver, but he demanded 50,000. Can you believe it? A cylinder which cost you merely 10,000 rupees with a cylinder and oxygen, that was costing me 50,000. But at that point of time, I had no choice. मैं कुछ नहीं कर सकता था और मुझे वो चाहिए था. I paid him advance. उन्होंने deliver करा, and my hands were shaking and I was not able to speak properly because I was quite scared at that moment, because वो न्यूज़ में इतनी सारी चीज़ें आना, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना. But the best part was that my complete full family was so supportive, including my younger brother who stood beside of me all the time, and he always said, don't worry bhaiya, everything will be okay. We are managing good, and we have been in touch with the doctor 24/7. We are following his advice. We are doing the blood test every now and then to check the sensitivity level of infection. So उसने बहुत मुश्किल था. पहली बार शायद मुझे लगता है लास्ट 15 सालों में मैंने उसे गले लगाया. He is 5 years younger than me. तो
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन चीज़ों को मैनेज करना। फिर सिलेंडर सेम डे नाइट में 1 o'clock डिलीवर हुआ और उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर डिलीवर करके छोड़ दिया। उसके बाद उसे ऊपर लेके आना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत हैवी सिलेंडर होता है। मैं मेरे डैड, मेरा ब्रदर ऊपर लेके आए किसी तरीके से सिलेंडर को। एंड यू नो इट फील्स लाइक जब एक घर में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, येस इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एज वेल कि हाँ चलो है सपोर्ट, बट इट फील्स लाइक अ नेगेटिव साइन एज वेल, यू नो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो 25th को उस वाइफ का SpO2 वेंट बिलो 90। जब हम फिंगर पे उस ऑक्सीमीटर को लगाते हैं, यूजुअली इट स्टार्ट्स विद 96 97 और एक पॉइंट पे स्टेबल होता है। 25th को जब हमने लगाया, इट स्टार्टेड विद 86 एंड मी एंड माई ब्रदर वॉज लाइक ओके दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। बट जब मैं अपनी वाइफ को लगाता था ना, तो अपने हाथ से ऐसे ढक देता था और ताकि उसे ना दिखे, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि जब पेशेंट को दिखता है तो दे स्टार्ट गेटिंग पैनिक अटैक्स, और उस टाइम पे आपका जो इम्यून सेल है वो काम करना बंद कर देता है, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन द सिचुएशन गेट्स वर्स्ट। सो आई केप्ट सेइंग हर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू स्टे साइलेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट चल रही है, आप परेशान मत हो, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। माई मॉम शी यूज्ड टू सिट देयर विद हर ऑल द टाइम। आई नो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इतनी महंगी मेडिसिन्स, एंड उसके बाद मैंने नर्स भी हायर करी सेम डे। बहुत डिफ़िकल्ट है, वो भी सबके लिए नहीं पॉसिबल है नर्स हायर करना, या फिर रिसोर्सेज नहीं होते या फिर पैसे नहीं होते। मेरे पास थे, मैंने किया। नहीं होता तो कोई एक पर्सन हमेशा बैठा होता उनके पास, उनकी हर चीज़ डिमांड को पूरा करना, उनका ध्यान रखना, उनको वॉशरूम लेके जाना, ऑल अदर थिंग्स, उनको खाना देना, फ्रूट्स देना, वॉट एवर। 25th को मेरे डॉक्टर ने कहा कि यू विल हैव टू पुट हर ऑन इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स नाउ, दैट विल गिव मच मोर फास्टर रिएक्शन। मैंने इमीडिएटली कुछ कॉन्टैक्ट्स लगाए, एक कंपाउंडर को बुलाया जो इंजेक्शन देता था मॉर्निंग एंड इवनिंग में आकर के। आफ्टर 3 days शी स्टार्टेड गेटिंग लिटिल बेटर, और उनका SpO2 वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 92 93 नाउ एंड वॉज मेंटेनिंग 94 95 समवेयर अबाउट। नर्स वॉज ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल, उनके डाइट को मेंटेन करना एंड ऑल। सो उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी बेटर होने लगी और होती चली गई। भगवान से ही मनाता था बैठ करके कि बस ठीक कर दो, जैसा भी हो जो भी हो, मैं दर्शन करने आऊँगा, बट यू नो डेस्टिनी इज़ रिटन समवेयर। और उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होने लगी, और ऑन 4th of May उनको हाफ फेस में पेन शुरू हुआ, नोज़, आइज़, हेड, जॉ, चीक्स। इनिशियली आई टुक इट लाइटली कि चलो ठीक है, पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो सकते हैं, यू नो। बट सडनली एट नाइट माई ब्रदर वॉज रीडिंग सम आर्टिकल ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ही फॉरवर्डेड मी ऑन WhatsApp. I was lying in the other room and it was a term mucormycosis that is also known as black fungus. और ये पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट्स को रिकवरी के बाद हो रहे थे। अब फिर मेरी हालत ख़राब हो गई इस चीज़ को देख करके, and that was quite difficult for me. Immediately at night 12:30 I spoke to my doctor and he said yes, mucormycosis is a thing, but ये usually mostly diabetic patients को होता है जो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, या फिर जिन्हें काफ़ी टाइम तक ऑक्सीजन लगा होता है या ICU में होते हैं, तो उनको ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर जो स्टेरलाइज्ड वाटर यूज़ नहीं होता ऑक्सीजन सिलेंडर में, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बट ही ऑल्सो एडवाइज मी कि नहीं, आप एक बार टेस्ट करवाओ, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर इन गंगाराम हॉस्पिटल, आप उनको लेके जाओ एंड आई विल स्पीक टू हिम। और उन्होंने सारी अरेंजमेंट करवा दी रात में ही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग द डॉक्टर कॉल मी अप एंड ही सेड कि वो मैं 11 बजे आ सकता हूँ। मैं लेके गया उनको, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, सिम्टम्स देखे, नेज़ल स्वैब भी लिया फॉर फंगल इन्फेक्शन टेस्ट, बट उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया देयर आर नील चांसेस। सो आई वॉज लाइक ओके, नील चांसेस हैं, दैट मीन्स ठीक है।
नेक्स्ट डे रिपोर्ट भी आई एंड देयर वाज नो फंगल इन्फेक्शन फाउंड. सो द होल पॉइंट इज दैट कि फ्रॉम द डे वन डू नॉट टेक इट लाइटली. नेवर एवर. वाई? इफ यू हैव अ सिम्टम, COVID-19 के symptoms like any other symptom, viral, loose motions, vomiting, body ache, fever, headache, anything. All these are symptom of. So do not ignore it. If you have it, start the medication the very same day after speaking to any of the doctor. आपके लोकल में डॉक्टर हैं, आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो. बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो एट नॉमिनल फ़ी. इट्स नॉट वेरी कॉस्टली. नहीं कर सकते हो तो आप कुछ यूट्यूब चैनल से डॉक्टर के अग्रवाल के वहाँ पे जाके देखो. उन्होंने मेडिसिन बताई हुई हैं इनिशियली जो आपको लेना है फॉर द फर्स्ट 5 days. सिम्टम वर्स्ट होने का वेट मत करो. आई हैव सीन केसेस पर्सनली इन माई फैमिली जो एक्चुअली में सिम्टम वर्स्ट होने का वेट करते हैं. दे आर लाइक नहीं ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल डोलो 650 या कालपोल ले लिया एंड दे आर सेइंग ओके आई विल बी फाइन. नहीं, ऐसा नहीं है. सिर्फ डोलो 650 और जिंक और विटामिन सी से नहीं होता. देयर आर सम मेडिसिन्स विच नीड्स टू बी एडेड इन दैट प्रिस्क्रिप्शन जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको इनिशियली ही सप्रेस करता है वायरस रेप्लिकेशंस को बॉडी में. सो मेक श्योर यू टेक एडवाइस फ्रॉम योर हेल्थ एक्सपर्ट और उनसे आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करो दिस वेरी सेम डे. 5 दिन के बाद जब सिम्टम अगर सप्रेस होने शुरू होते हैं दैट्स अ गुड साइन. नहीं होते हैं, अगर आपको बॉडी में कुछ नया सिम्टम दिखता है या कोई नई दिक्कत आती है जैसे बहुत ज़्यादा खांसी होना, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें जब होती है इमीडिएटली इन्फॉर्म योर डॉक्टर. और जो डॉक्टर आपको टेस्ट बोल रहे हैं वो करवाओ, वो ज़रूरी है. बिकॉज डॉक्टर आर नॉट लाइक मैजिशियंस और दे डू नॉट हैव मैजिक वॉन्ड के ऐसे घुमाया उनको पता लग गया आपके अंदर क्या चल रहा है. नहीं, जब वो बोल रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कराओ जिसमें 4-5 टर्म्स हैं जो आपको कराने होते हैं या HRCT, गेट इट डन वंस टू गेट द थिंग क्लियरिफाइड कि हाँ ये चीज़ हो सकती है या फिर इन्फेक्शन लेवल इतना है तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी. द ओनली रीज़न ऑफ मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया इज डिले इन ट्रीटमेंट. इफ़ यू डिले you lose the chance or you end up in the hospital. Don't do that. और मैं इस नोट पे ही इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल अभी कुछ टाइम तक कोविड से रिलेटेड ही बताता रहेगा. स्पेशली मी, my wife will be coming sometimes in some of the sessions and she'll be describing her experience. How did she go through? उसके बाद फिर हम अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताएंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद द नीडी पर्सन टू एज मच एज यू कैन सो दैट वो अलर्ट रहे इन चीज़ों को लेकर के. सिर्फ ऑक्सीमीटर लगाने से या थर्मोमीटर लगाने से कोरोना नहीं जाएगा. देयर आर अदर थिंग्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. And my next video will be about different things, my travel experience, my quarantine experience, my pet experience, my family experience. It will be all about experiences. So stay connected with me, stay tuned with me all the time, and do share, subscribe and like my channel. So take care. Till then, goodbye.